Good evening, sir. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will study today BTST or STBT method. Buy today, sell tomorrow, or sell tomorrow, buy today. Now, so first of all, for this, we need some data. First of all, future buy and sell ratio. No, PCR ratio, put call ratio. And next one is delivery percentage. Now, based on this, we will select a stocks and then plan to take the entry. Now, you say any stock name, anyone today, TCS. TCS. Nice. We will open NSC. And in NSC, gold 10 gram future contracts. Okay. Now, first of all, we have type here TCS, Tata Consultancy Service. Now, here you will watch equity which has previous close, open, all these things. Order book and everything. Now, second one, it contains trade information, historical data. इसको स्विंग का काम में आएगा. Now, next it contains derivatives. Derivative means stocks future and stock option. So if I will check a stocks future and expiry date is 30th March, here you will get some information कि 30th March की expiry वाली में क्या condition है. Now, here you can see that 18.57% buy, 81.43% sell. Buy and sell quantity after the market close or right now. Next one, it contains option chain data. In option chain data, it has you will analyze closely. Upper side has a different color and lower side is white. So as the TCS close price is 2398, तो इसके ऊपर में जो प्राइस है दैट प्राइस हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग प्राइस, मतलब ये सारी प्राइस आ चुकी है. तो when it is included it is called in the money. Above this it is called 2400 and 2420. It is called right now price is there and based on this अभी जो दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है इट इज कॉल्ड एट द मनी. But strike price 2380, 2360, all the price has been included there. So it is called in the money. And in the money, there is also open interest, change in open interest. Similarly, for the put side, the price which has already come, it is out of money. अच्छा, इसके नीचे जो है ये out of money. Price is about to come. अभी आने वाला है, it has not come. And similarly, vice versa towards the put side there. It is the put side. Now, so
The price which has the price which is about to come is called in the money, और जो प्राइस आ चुका है इट इज कॉल्ड आउट द मनी. That's why if you will check, LTP price decreases, LTP price increases. Here again, LTP price increases and decreases. So we need total option position now. So you can see open interest. So first of all, what is open interest? When any future contract buy and sell complete, someone has purchased one contract, someone has sold. So total buy and sell including it counts a open interest one. तो कितना बाई सेल हुआ है? हियर इट इज गिवन 86,132 कॉल साइड सेल. हियर इट इज 75,000. नॉर्मली in option chain it is considered it is the seller's data rather than buyer's data. तो sellers की important. तो it is the call side open interest, it is the put side open interest. Now next important information will you have to use there, NSC delivery percentage. So we will check it there, TCS. अभी मार्केट अच्छी नहीं है तो मैं भी नहीं दे रहा हूं, थोड़ी अच्छी होने दे मार्केट को ना. Here there are so many information, previous, close, open, and it has a number of trades, total traded quantity, and deliverable quantity. Now, so percentage deliverable मतलब this by this, इसका percentage. So today TCS में 51%, 51% ट्रेडेड क्वांटिटी और से हमारी 51% क्वांटिटी टेकन inside delivery. When anyone takes this quantity delivery, it is considered as right now price is about to go up. That's why someone is accumulating there. Again, here 51%, 60%, 55%. So it is considered that when the price is more than 40 or 45%, it is someone is accumulating the stocks and its view or is to go up the market. Here it is clear, all the data. Yes, sir. Okay. And where the price is very, very less, sorry, delivery. No, here. Delivery percentage is very small, like 20, 25. Means people are not interested to accumulate the stock at that price, and that's why chances of going up increases. Means we can say कि it is your bearish data. Now, so for this, first of all, I have taken here TCS. Symbol is also TCS now. Future buy and sell data. So, what is the future buy data today? Come to again derivatives part and TCS stocks future expiry date 30th March. Now, I have taken. 33,600 क्वांटिटी बाई. अभी जो बाई पोजीशन खड़ा है 33,600. नाउ सेल पोजीशन इज 1,47,000 मोटा मोटा. नाउ so here it becomes 0.22 ratio. I am just coming to this now. Second one, you have to put call position and put position PCR ratio. So for this you have to come here. आपको यहां पर आना है, स्टॉक
ये सॉरी, सिंपली क्लिक ऑन ऑप्शन चेक, टोटल ओआई डेटा, कॉल साइड ओआई डेटा 86132, ये कॉल साइड का डेटा है। ये जो है कॉल साइड का डेटा है, और ये इट इज द पुट साइड डेटा ना। सो हियर 86132, 86132, and next put side is 75099 now. Okay, nice. PCR ratio is good. Now, we will check delivery percentage of the TCS. So TCS last 1 week delivery percent 51, 54. So you can also add it there. 51, 54, sorry, 44, 51, 44, then 57. Last 5 data we will take 57, 51, 39. 57, 51, 39. Now, I have got this ratio there. Now, so it is indicating towards. So, now, if FBS ratio, future buy and sell ratio, if buy is more than sell, मतलब अगर बाई साइड सेल साइड से, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पीपल मेक्स नॉर्मली रॉ पोजीशंस, तो वो मतलब क्या करते हैं कि हेज भी करते हैं। सो नाउ इट इज कंसिडर्ड कि इफ एबीएस रेशियो ग्रेटर देन 0.65, it is considered as bullish, and if it is greater than 0.85 to 0.9, ABS means future buy contract divided by sell contract, buy divided by sell. Now it becomes highly bullish, and then if it is greater than 1, it is considered as super bullish. Similarly, if it is less than this, bearish, less than 0.45, highly bearish, 0.35, super bearish. Now, similarly, PCR ratio greater than 0.65, bullish, 0.80, 0.70 or 80, highly bullish or super bullish. No. 0.50, similarly, highly bullish, highly bearish. Now, delivery percentage of the last 1 week indicates that now, if average is greater than 0.5, मतलब 50% से ज्यादा या नियर बाय 50% people are accepting the stocks in their डिलीवरी, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये डेटा हाईली बुलिश है। और अगर इससे कम है 0.45 या 0.40, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि बियरिश है। नाउ, सो व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड टीसीएस डेटा, व्हाट आई हैव गॉट कि एज पर फ्यूचर, सो फर्स्ट प्रायोरिटी आई विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द future contracts. So future contracts buy is very, very less compared to. So it is indicating towards super bearish views. Again, PCR ratio, which is indicating towards super bullish because it is greater than 0.80 or 85 super. Now, delivery percentage is also 0.48. Sorry, I count. No, so it is नॉर्मली कंसिडर्ड ये कि 0.48 है, मतलब 48% पीपल हैज टेकन, सो इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश। बट इफ आई विल एनालाइज दिस स्टॉक, कैन आई से, कैन आई क्रिएट एनी व्यूज कि नेक्स्ट डे ये बुलिश होगा कि बियरिश होगा? बिकॉज डेटा इज कॉन्ट्राडिक्टिंग इटसेल्फ, ये बता रहा है सुपर बियरिश, ये बता रहा है।
तो कैन वी मेक No, एनी sir, और कैन वी, हाँ ये सर, एक सेकंड, कैन वी in this प्लान option इन, chain, sir, TCS option chain PCR ratio shown as 0.55. वेयर I सर? think you have taken volume. For call side, for put side, you have taken volume as the Y data. Maybe, let me check, maybe. Because in this is further columns they are in right side. I have taken OI sir, option data, OI data I have Yes, sir, taken. but for put side, you have taken volume as the data, not Y. Yes. 46900, sorry. Four So six, it becomes bearish. yes, 46900. So now it becomes just bullish, but not so much bullish. So TCS, as per today view, it is first priority we will give to FBS ratio, and then second priority to the delivery percentage, and third priority. तो अगर ये भी सुपर बियरिश है और ये जस्ट बुलिश, मतलब नॉट सुपर और सर हाईली बुलिश, तो वी कैन कंसिडर ठीक है, इट इज योर न्यूट्रल टाइप डेटा, 0.5 न्यूट्रल काइंड ऑफ डेटा, एंड अगेन डिलीवरी परसेंटेज 0.48 इंडिकेटेड, बट अगेन नॉट सो मच कॉन्फॉर्मेशन। और कुछ देखते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल Let's say DMart, sir. डीमार्ट, यस, वाई नॉट सर, एवेन्यू सुपरमार्ट, नाउ हियर DMart stocks future and 30th March. Here stocks future data available. 20, yes, nice. 28 900, 26 100. 28 DMart. 28 And 900, 26 100. It is indicating towards super bullish. What the option data is saying? Option data is saying. So here we will come and you will get option chain, and option chain you have got, it is the call side open interest, it is the put side। मोटा मोटा मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है, 10,000 और 5,700, 10,000, now it is your bullish but not neutral kind of a data, but not also so much bearish, means 0.57, if it is greater than, मोटा मोटा it is a neutral kind of data। Now l- let me check delivery percentage, revenue supermarket. So here 41.13, 41, 41, 52. So can we say that this data is also less than 40? So it is bearish. yes, sir. So it is also indicating towards bearish. Not so much. But here, first priority is your super bullish and then bullish and then. So I cannot plan any kind of this. So for this solution, I will just run BTST scanner. So if I will get now, here I have got L&T Bajaj Finance। इसको एक बार चेक कर लेते, L&T Bajaj Finance, इसमें क्या कंडीशन बना हुआ है। L&T 58,975, 90,000, मतलब 59,000, 90,000, मोटा मोटा मैं उसको मेंशन करता हूँ। L&T 58,000, 90,000, no, just bullish, okay, nice।
91,000, 44,000. 91,000, 44,000. 0.91,044 bearish. And also delivery percentage of LNT. Superb here, delivery percent more than 55% if you will calculate. So it is indicating towards bullish delivery percentage. But again, here it is indicating towards bullish. Here it is indicating towards. So again, a confusion data has been created. So कोई एक अच्छा सा डेटा मिले जिसमें मतलब दोनों ही हो. सेकंड, बजाज फाइनेंस में क्या कंडीशन. नहीं, बजाज फाइनेंस ही लेते हैं, ठीक है. 2,22,000, 1,62,000. बजाज फाइनेंस. 2,22,000 एंड 1,62,000, 1,60,000. Now Bajaj Finance is super bullish based on this. What is option chain indicating? 32,000, 21,000. 32,000, 21,000. Highly bullish, nice. And again, any supportive data of this. Yes, nice delivery percentage. Perfect, sir. More than, if you will find the average of this, you will get average more than 55 or 58 something. So, can we conclude कि Bajaj Finance as per ABS ratio super bullish, as per PCR ratio highly bullish, also your delivery percentage in a favor. So, can we make कि हम लोग इसमें आराम से पोजीशन बना सकते हैं फॉर द BTST. Yes, sir. So can we just go to the chart and just analyze chart? After that, you analyze the chart. After that means Yes. no. Also, Bajaj Finance has given superb breakout. लास्ट टाइम में इसमें क्या है कि वॉल्यूम भी अच्छा आया है, वो मैंने देखा है आज. लेकिन अभी मार्केट का कंडीशन ऐसा नहीं, और मेरा अर्ली मॉर्निंग में लॉस भी हुआ था तो मैंने उसको छोड़ दिया वो. और निफ्टी में मेरा वो लॉस हो गया तो अराउंड 9,500-10,000. नो, हियर दिस volume is now analyzed based on this. First of all, it is at the bottom. Yes or no? Yes. Yes. It has formed superb candle here, hammer candle. Okay. Then, Follow-up candle is also there. हाँ, yes. अरे फोन कहाँ है वो? एक सेकंड सर. अरे फोन काफी आस्ते पे. Now, here. It has formed. Now, what the volume indicates? Volume bars created here, and also the volume bar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, means from here to here. It has also given वॉल्यूम टुडे. अच्छा, मतलब कि वॉल्यूम भी है. इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स बाइंग वॉल्यूम. जब वो बाइंग वॉल्यूम ऐसा मतलब अच्छा वॉल्यूम या अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट में एक प्रॉब्लम. तो ये अगेन यहाँ पर है, बॉटम पर है, और एक अच्छा वॉल्यूम भी आया है, और ये मतलब काफी दिनों का बिग वॉल्यूम है. सो वी कैन कंसीडर इट इज राइट नाउ बुलिश. अगेन, what happened on hourly chart analysis? Last time volume any created
वॉल्यूम यहाँ पर है, दिस इज योर वॉल्यूम कैंडल, नो, एंड अगेन नाउ हियर, ओके. So volume candle and it and also it is indicating कि last minute price is rising, volume is also increasing. Okay, nice. And what is the momentum indicator indicating? अगर इसको टेक्निकल पर एनालिसिस करना है तो कैन वी से कि आवरली चार्ट RSI ग्रेटर देन 55. Yes, sir. So when it is indicating towards greater than 55, chances of going up market increases. So based on technical analysis and based on all the big players decoding data, can we say कि बजाज फाइनेंस अगर मार्केट में कल 500-700 पॉइंट का गैप्स नहीं हो जाते, बजाज फाइनेंस हैज अपसाइड मोमेंटम, सो यू कैन मेक योर पोजीशन देयर नाउ. I have run scanner. I have got here persistent. Okay. 4% up. से मुझे कुछ no persistent. What is the criteria? Persistent. Sorry. स्कैन हमें 3 बजे के बाद करना है ना? सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ क्या क्या करना है. आपको कुछ नहीं बोलना है, पूरी सेशन सुने. मैंने शुरुआत एकदम बिगिनिंग से किया तो मैं पूरी एंड तक बताऊंगा कब करना है, कैसे करना है, किसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, वो स्कैनर के साथ भी मैं बताऊंगा ना. हियर ओके. 27,700 is the future buy contracts and 23,300 is the sell contract. So analyze persistent first based on the data available. Now, can anyone say 27,700 27,700. और ठीक है 700 इसका कितना है सर? 23,300. 23,300. 22,300 है ना? नहीं, 23,300 है ना. Super bullish indicating. Now, what the option chain and option data or PC are indicating? 14,900, 9,226. 14,000 9,000 लिख देते हैं, मोटा मोटा एक में मतलब फिगर लिख देते हैं. 14,000 9,000. Bullish, not bearish, but it is bullish. Now, check the delivery percentage of persistent. ओहो, क्या हुआ? लास्ट वन 46-36. ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 43-44 है, थोड़ा कम है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज थोड़ी अच्छी है 2 दिनों से ना. सो इट इज ऑल्सो वी कैन से कि नॉट सो मच बियरिश की 2018 नहीं है, पीपल हैज टेकन. तो कैन वी से कि परसिस्टेंट स्टिल इट इज योर सुपर बुलिश, it is bullish, it is not super bearish, but it is the neutral data, can I say. So we can make another entry plan in the persistence. मैं आता हूं कब बनाना है. Now, you just open the chart on and also analyze. Okay, first of all, it has created super volume here and price is increasing, volume is also increasing. RSI is also momentum indicator, above 70 है. ठीक है, 15 मिनट्स पर देख लेते हैं. इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑल्सो अपसाइड मोमेंटम. एंड ऑन द 1 डे चार्ट पर क्या है ये? नॉट क्रॉस. ओके, नो प्रॉब्लम, क्रॉस नहीं किया है 1 डे चार्ट, बट hourly chart or 2 hours chart, it is indicating कि we have a right now upside momentum. So technical is also in my favor, and also 2 hours chart is showing that last time, yeah, last
जो हमारी कैंडल है 2 घंटे की, इसमें अच्छी बाइंग भी हुई है, अच्छी बाइंग, एक वॉल्यूम भी आई है। अगेन ओपन इक्वल्स टू लो, ऑल्सो ऑल दिस क्राइटेरिया इज देयर। सो बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस कैन वी से कि इट हैज अपसाइड मोमेंटम, indicator is also supporting, and all the big players data when I have decoded, it is also supporting कि now I am bullish. So can we make any plan in the persistent entry? Yes. Now, last one. I'm just saying last one, Apollo Hospital. इसके बाद कब बनानी है नहीं बनानी, आई एम जस्ट कमिंग दिस अपोलो हॉस्पिटल। नाउ हियर हिस्टोरिकल डेटा मैं आप लोगों को जब स्विंग पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं एक अच्छा इंफॉर्मेशन दूंगा हिस्टोरिकल डेटा में, अभी नहीं, ठीक है। ब्लॉक एंड बल्क डील्स ये सब बाद में। व्हाट हैपेंड हियर, यस, कम टू द डेरिवेटिव पार्ट्स, स्टॉक्स फ्यूचर एंड 30th March। व्हाट इज द फ्यूचर डेटा सेइंग 27,500, 2750। नाउ व्हाट आई हैव टेकन सर, स्टॉक्स का नाम अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल कितना था सर डेटा, कोई मुझको बता सकते हैं? हाँ, ट्वेंटी सेवन 27,500, थाउजेंड 27,520, 750। ठीक, सुपर बुलिश, इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड सुपर बुलिश। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन चेन डेटा एंड व्हाट इज इंडिकेटिंग 8,7423, 8,7423, okay, a super bullish, nice, you have got. And finally if अपोलो डिलीवरी। हॉस्पिटल, हाँ डिलीवरी परसेंटेज Apollo. अपोलो हॉस्पिटल, यस, सुपर डिलीवरी परसेंटेज ओह वेरी, इस लास्ट 5 मीन्स ऑलमोस्ट पीपल, सिक्स। इसका मतलब होता है कि लोग सौदे को ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में निकल ले, नहीं, सौदे एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, मतलब इट इज इंडिकेटिंग कि उनकी व्यूज है। अभी जैसे क्या है कि इतनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है तो इसमें तो सर बिग प्लेयर्स भी है ना, कुछ रिटेल्स है लेकिन बिग प्लेयर्स तो दे आर एक्सेप्टिंग कि मीन्स दे हैव व्यूज कि इट विल गो अप। सो नाउ कम टू द टेक्निकल चार्ट। आप और कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, बोलिंगर बैंड ये हो, मैं वो आपको मना नहीं करूंगा ना। अगेन आरएसआई 1-2 आवर्स चार्ट, पहले हम लोग 1 आवर की एनालिसिस देख लेते ना। लास्ट 1 आवर सुपर बाइंग वॉल्यूम हैज कम। ये बाइंग वॉल्यूम में क्यों बोल रहा हूं, ये वॉल्यूम सेलिंग भी हो सकता है, बट आई मीन टू से कि when the price is also there and price is in your narrow range. Now, first it created open equals to low, then it has come here. So we can say कि sellers are not in control to make the Apollo hospital down. And again, last minute buying volume has come. एंड ये बाइंग वॉल्यूम कितना है, मतलब ये ना, एंड अगेन आरएसआई आवरली greater than 55%. So momentum indicator is also saying that I am in favor. So all the big players decoding data and also technical analysis RSI indicating towards a momentum of the upside. Now coming to the daily chart. Here it has created bottom and today it has opened around इसका 50% and it has turned. So can we make also position, इसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अपसाइड का हम लोग पोजीशन बनाएं, तो अपसाइड क्योंकि यहाँ की भी डेटा फेवर में है एंड टेक्निकल में आरएसआई वॉल्यूम ऑल्सो सपोर्टिंग, सो वी कैन मेक अपोलो हॉस्पिटल, हम लोग उसको बाई करके अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब बाई टुडे ना। नेक्स्ट पार्ट, सो आई विल शेयर दिस एवरीथिंग। इसमें ये है बीटीएसटी की, इसमें है नैरो रेंज ब्रेकआउट 7 days 12 days,
इसमें 52 वीक्स हाई, 10 मिनट्स हाई ग्रेटर देन मंथली हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई लो। तो आई विल शेयर दिस, यू विल गेट ऑल द charting screener. Now, run screener around 240 to 245. इसके अराउंड you will get what? How to do? Today I have not got any when I have run. डेली क्रॉस इसको एक बार करेंगे और इसको एक बार ऑफ करके इसको एक बार हम लोग रन करेंगे। तो दोनों में क्या है कि कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, सपोज 2 to 3 स्टॉक्स यहाँ मिले, आज नहीं मिले हैं, लेकिन सपोज और यहाँ पर 4-5 स्टॉक्स मिले। तो आई हैव गॉट द स्टॉक्स फ्रॉम देयर, टोटल सपोज आई हैव गॉट द 6 to 7 स्टॉक्स। सो when you will analyze a stock, it will take maximum 3 मिनट लगेगा सर। हेलो, यस सर। मतलब एनालाइज किसको करना है, मैं सबसे पहले बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस पर बाद में जाना है। फर्स्ट ओपन द चार्ट एंड फ्रॉम हियर इफ यू आर गेटिंग अ सुपर कॉन्फर्मेशन लाइक अपोलो हॉस्पिटल, लाइक योर बजाज फाइनेंस, मीन्स where data is in my favor, super bullish, highly bullish, super bullish, highly bullish, it is also bullish, only these stocks you have to filter and then go to the technical chart and then analyze the data. Now you have analyzed on hourly chart, 15 minutes daily chart along with RSI or along with any trendy indicator analyzed. So all this analysis, suppose I have taken here 30 minutes. Okay, 6 to 7 stocks, maximum 30 minutes. So time has become around sir 3:15. Okay, yes or no? 3:10 से 3:15 टाइम आपका हो गया ना। सपोज हियर यू हैव गॉट बजाज फाइनेंस टुडे, अपोलो हॉस्पिटल टुडे, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, दो स्टॉक्स जो मुझे एकदम से कॉन्फर्म मिले हैं, ठीक है। तो जब तक ये आपको दो मिले हैं, अब ये बाकी एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ दे। नाउ अराउंड 3:15 अगेन एनालाइज, आफ्टर 3:15 अराउंड सर 3:18 3:20 3:18 टू सर 3:20 अगेन एनालाइज ए बीएस रेशियो, इट विल टेक 1 minute to again analyze and again analyze Apollo Hospital. Now, why around 3:18 to sir 3:20? Why you have to do this? Because some intraday contracts will be a square of today. मतलब उस टाइम पर कुछ इंट्राडे स्क्वायर अप हो जाएंगे। तो जो इंट्राडे स्क्वायर अप व्हेन यू हैव स्टार्टेड द, जब आपने शुरू किया तो इंट्राडे वाले अभी भी हैं, बट व्हेन द टाइम विल कम टू 3:18 to 3:20 अगेन यू हैव गॉट टू स्टॉक्स टुडे, सपोज यू हैव गॉट बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, आई एम जस्ट ऑल्सो एक्सेप्टिंग परसिस्टेंट। ओके, नाउ तीनों को एक बार फिर से एफबीएस रेशियो और ऑप्शन चेन एनालाइज कर ले एंड इट इज, और तीनों में से जो इंडिकेट कर रहा है कि नाउ आई एम स्टिल सुपर बुलिश, हाईली बुलिश और स्टिल सुपर बुलिश, मेक्सर पोजीशन, सपोज ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो दोनों में आप एक एक लॉट का पोजीशन बना सकते हैं। तो यू हैव टू मेक सर पोजीशन आफ्टर सर 3:20, एनालाइज अगेन एंड देन make your position around 3:22 3:25 and all these things, make your position. Now clear? Any doubt? सर सर ये बीएस डिलीवरी का जो होता है रेशो, ये सेम डे में आ जाता है ये, या मार्केट बंद होने के बाद आता है? नहीं, आपको 5 दिन पहले की डिलीवरी देखनी है ना, तो ये नहीं आएगा, सेम डे का नहीं आएगा। बाकी डेटा आपको सेम डे का आ जाएगा एवरी टाइम, बट तो सर नहीं फिर आएगा तो अगर आप, 5 दिन का
सर लास्ट 5 डे का देखना तो वो तो हम 2 बजे भी देख सकते हैं। उसके लिए डिलीवरी 3:20 पे परसेंटेज ब्रेक चेंज कर नहीं देंगे। होता है, नहीं नहीं, मैंने क्या बोला कि डिलीवरी परसेंटेज एनालाइज नहीं करना है, ये नहीं चेंज होगा। ओनली यू हैव टू एनालाइज दिस टू। मैंने क्या बोला कि 3:20 के बाद में 2 से 3 मिनट लगेगा। यू हैव टू एनालाइज कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट्स कितना स्क्वायर अप हुआ, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितना स्क्वायर अप हुआ। बस इतना ओके। ही करना, डिलीवरी आपके लिए चेंज नहीं होता, वो जो है वो फिक्स है। सर एक चीज और सर, जैसे इसमें स्टॉप लॉस क्या लेंगे सर? जैसे आज हमने बाय कर लिया, अगर उसमें बाय आते हैं, चांस वो अगले आगे दिन। की टॉपिक पे आते हैं, अभी जो बताए हैं वो सर ओके क्लियर है, कब लेना है नहीं। आगे की टॉपिक ओके है स्टॉप लॉस कब सर ओके हम सर। लोग ना। ओके। अभी तक क्लियर है सर, या हाँ किसी सर, को अभी कोई के डाउट? इसमें एक यस सर। Yes, एक sir, यस सर, clear. सर क्लियर है। एक सर मिनट। ये यस। इंडेक्स में अभी भी के यूज इसमें होता आपने बोला, एक मिनट। अभी के सर आपने बताया कि RSI 55 के ऊपर, 55 तो बहुत ही बेस रेंज है, लाइक मिडल प्राइस है, तो वो मोमेंटम कैसे दिखाएगा? मोमेंटम तो तब आएगा ना 60 आई के ऊपर, यू 70 के ऊपर हैव जाएगा तो। ऑलरेडी, ओहो, आई यू आर नॉट एनालाइजिंग बेस्ड ऑन द आरएसआई। आप सिर्फ आरएसआई पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। You are not analyzing. You ओके have, I know, 55 is the base, 60 is all this. But when you have got confirmation from here कि Apollo Hospital is right now super bullish, then you are analyzing the technical data. तो उसमें अगर ओके, 55 के मतलब मेन ऊपर ये में ठीक डेटा है, है। 50। हाँ, मेन डेटा जब आपको यहां से अगर कॉन्फर्मेशन नहीं मिला तो टेक्निकल पे जाने का जरूरत ही नहीं है ना भैया, बात खत्म। ओके ओके। जब सर यहां आजकल से तो आपको मार्केट मिल रहा बहुत है, वोलाटाइल है, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड करना पोजीशन ठीक रहेगा? अभी मार्केट बहुत अच्छा नहीं, अभी तो volatile मैं खुद भी नहीं कर रहा हूं, तो अभी नहीं। बट ये मार्केट तो आज नहीं, कल नहीं, तो 10 दिन में तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, जब है। इतनी बड़ी बड़ी गैप्स नहीं क्रिएट होगी। हम्म। तो अभी एडवाइजेबल नहीं है। अभी एडवाइजेबल नहीं है। और ये सबसे बेस्ट कब काम करता वो भी मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट में 300-300 पॉइंट की सर गैप्स हो जाएगी, 500 पॉइंट डाउन हो जाएगी, तो एवरीथिंग विल बी डाउन ना। तो राइट नाउ इट इज द न्यूज बेस्ड, लेट द मार्केट एडजस्ट। अभी तो मेरी ट्रेड भी नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। हम लोग सर गैन की क्या है कि टीसीडी लेवल पर काम कर रहा है, नहीं चल रहा है। मैंने दिया अपोलो हॉस्पिटल, मेरा प्राइस आने से पहले वो ऊपर से निकल गया, तो इट इज द न्यूज बेस्ड, तो नहीं चल रहे हैं। तो let the market adjust. When the market will adjust and come to the phase like this, come to the phase like this, or sorry, Nifty, not so much big gaps. When the market will create small gaps or something there, you will work, it will work best. नंबर वन, तो इसको अभी के लिए थोड़ी मार्केट में ऐसी है कि न्यूज बेस्ड एंड पैनिक में। नेक्स्ट, इट्स बेस्ट यूजेज जो अच्छी पैसे बना करके देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड। सपोज कंपनी हैज टू अनाउंस हाउ टू फाइंड, एवरीवन नोज कि कंपनी के रिजल्ट, कौन कौन कंपनी के रिजल्ट किस दिन आने वाली है, एवरीवन नोज। हेलो, तो इसमें सर हाउ टू, इवेंट इवेंट मार्क कर देते हैं। इवेंट नहीं, मैं सर ठीक है रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, एवरी सर क्वार्टर रिजल्ट। ओके। तो सब लोगों को पता है, मैं वो स्कैनर शेयर कर दूंगा, स्टॉक्स, स्टॉक्स रिजल्ट्स कैलेंडर। आप करेंगे तो मनी कंट्रोल में ही आ जाएगी, बीएससी में भी आती है। तो अभी जैसे कि ठीक है रिजल्ट पीरियड नहीं है, अगर रिजल्ट पीरियड होंगे तो कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आने वाली है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी ना। what you have to do, it will give the best movement during your result session also. Now, suppose ABB has to announce result on 26th, मार्केट क्लोजर रामनवमी के लिए, वो मैं अवॉइड कर देता हूँ, 26th। सो यू एनालाइज ऑन 24th। 26th को जब रिजल्ट आएगी तो मार्केट में ट्रैपिंग भी हो सकती है, समटाइम्स सर गुड रिजल्ट, बट यू विल से स्टॉक्स इज डाउन।
समटाइम्स बैड रिजल्ट बट स्टॉक्स इज नॉट टू मच डाउन। तो जब से रिजल्ट आती है तो ट्रैपिंग भी होती है। सो इट इज द बेस्ट, कंपनी हैज टू अनाउंस द रिजल्ट उससे एक दिन से एक दिन पहले, 2 days earlier you analyze on 24th ABB, and if you are getting based on this you will definitely get, अगर 5 की करेंगे तो 2 आपको मिलने ही मिलने हैं। एंड इफ यू विल गेट ABB, बिकॉज एट दैट टाइम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट आने से पहले अपनी पोजीशन बचाते हैं, ये करते हैं नई पोजीशन। तो इफ ABB यू आर गेटिंग सुपर बुलिश और बियरिश, मेक पोजीशन, make position, and then book profit next day. Don't wait for the next day, ठीक है, रिजल्ट है, बिकॉज अच्छी रिजल्ट बट सम सर मार्केट विल बी वोलाटाइल। बट कंपनी की रिजल्ट आने से पहले इट इज एक्सपेक्टेड कि इफ द रिजल्ट विल कम गुड, इट विल गिव सर मैक्सिमम टाइम गुड मूवमेंट 1 day अर्लियर। जैसे आज ही मतलब कि अच्छी मूव दे देगा वो, कल क्या है कि ट्रैप कर देगा वो, ठीक है, रिजल्ट में। अब बोलेंगे सर कितने बजे रिजल्ट आएगी, तो नो वन सेज कि एट व्हाट टाइम रिजल्ट विल कम, ये सर किसी को नहीं पता रहता है। ये कहीं ऑफिशियली हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ABB का रिजल्ट किस पर्टिकुलर टाइम पर आएगा। उसके लिए आपको एवरी टाइम टीवी के सामने बैठ करके रहना होगा। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो वी विल नाउ, इट इज क्लियर सर, वेयर टू चेक, व्हेन टू टेक एंट्री। यस सर, यस यस। अच्छे पैसे बनेंगे, अच्छे पैसे बनेंगे सर, इस टाइम पर ओके सर। रिजल्ट सीजन में अच्छे पैसे बनते हैं इसमें ना। in sir this case when you are taking BTSD stocks, so it is very very difficult to find the stop loss, because you have purchased today Apollo Hospital, you are getting 100 points early in the morning 15 minutes में, you just go and sir book profit, enjoy, or at least book one lot and then trail one lot। तो ये क्या है कि ओके सर। आज हम लोग खरीदेंगे, कल हम लोग तो ना, यू बाई अराउंड सर, ठीक है, 322 to 350 ना, सेल मैक्स अराउंड 1015 to 1030, ठीक है, 12 बार WT कैन मदर कैंडल, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ट्रेंड चेंजेस अराउंड 1015। सो सपोज right now trade is in your favor, you have not booked, okay, trade, but it will trap you and after 10-15 and you can incur the loss। so इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी पहले ही प्रॉफिट को बुक कर ले। मार्केट खुली, बजाज फाइनेंस में 1% की प्रॉफिट बन रही है, गो एंड बुक, एंजॉय। अभी स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस इज द एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अभी जैसे स्टॉप लॉस, पहला बात की स्टॉप लॉस कम मिलती है, बट स्टॉप लॉस इज द मैक्सिमम प्रीवियस। सपोज कि ये है निफ्टी, ठीक है, सॉरी एक काम करते हैं, बजाज फाइनेंस खोल लेते हैं। ये सर रिजल्ट ओरिएंटेड में अच्छे पैसे बनते हैं हर सर 3 महीने में ना। Suppose you have expected it will go up, but it may happen कि it may come down। आपने एक्सपेक्ट किया कि 860 तक जाएंगे कल अर्ली मॉर्निंग में, ओके नाइस, बट ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। तो मैक्सिमम सर वेटिंग टाइम अप टू 9:55 to 10, इफ इट क्रॉसेस द प्रीवियस डे हाई, अगर सपोज आपका एक्सपेक्टेशन व्यू है, ठीक है, और उस केस में अगर ये प्रीवियस डे हाई को क्लोज कर देता है तब तो आप मतलब बने रहे। अदरवाइज अप टू 10 इफ इट इज अगेन ट्रेडिंग बिटवीन दिस जोन, नाइदर प्रीवियस डे हाई nor anything, it go and book a stop loss there।
उसमें आपको लॉस बुक कर लेना होगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि इफ यू विल टेकिंग ऑप्शन और फ्यूचर ऑल्सो गुड, बट व्हेन आफ्टर एनालिसिस आई नॉर्मली डू, क्योंकि हाँ, अपोलो हॉस्पिटल साइज इज 100 तो ज्यादा लॉस। बट व्हाट आई नॉर्मली डू, सपोज कि आई हैव गॉट एनीथिंग नॉट सुपर बियरिश, अपोलो हॉस्पिटल सुपर बुलिश सुपर बुलिश, तो कैन आई ऑल्सो बाई 50 to 100 क्वांटिटी इन कैश एंड सर बुक प्रॉफिट अर्ली इन द मॉर्निंग? ये भी हम लोग करते हैं कैश में, मतलब ओनली हम लोग बियरिश वाली नहीं देखेंगे, मतलब rather than future and option you can also buy in cash, and if you are getting 100 to 80 to 100 points next, go and book profits. इन केस ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, अगर अर्ली मॉर्निंग में आपको, अगर ठीक है बजाज फाइनेंस में 1%, अभी कितना मिलेगा वो तो कल पर डिपेंड करेगा ना, तो ये अभी पास्ट की एनालिसिस मेथड इज दिस, entry time, maximum profit booking I have. But early in the morning 9:20 you were getting 1%, 1.2% in sir Bajaj Finance, go and book profit, enjoy। वहां से मार्केट फटाक से अगर रिवर्स कर दे तो बुक प्रॉफिट एंड एंजॉय नाउ। सो ड्यूरिंग सर रिजल्ट सीजन analyze 2 days earlier and then make position, analyze on 24th and entry on 24th। टाइम तो मैंने बता ही दिया है। एंड देन प्रॉफिट और लॉस बुक ऑन 25th। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर ये चीज इंडेक्स में भी कर सकते हैं? इंडेक्स बीटी में इंडेक्स काम टी करती है, मैं एक्टिविटी। ना नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडेक्स में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थोड़ी नहीं अच्छी प्रॉब्लम की गैप अप होगी कि गैप डाउन होगी, इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगी, लेकिन उसमें हमारे लिए डिलीवरी परसेंटेज भी नहीं आता है, तो ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन की बेस पर आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा वो। ठीक है, बट कर सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, कर सकते हैं। बट while doing index you have calculated FBS, you have calculated OP, but after that definitely calculate a technical analysis कि टेक्निकल एनालिसिस पर क्या हो रहा है, देन सर कॉन्फर्मेशन की ऑल आर इन माय फेवर, देन यू कैन मेक पोजीशन इन इंडेक्स। Sir, is it possible to put a stop loss for BTST for tomorrow trade? We can put a stop loss today. GTT order you can apply, GTT order you can put the system, GTT ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये मेरे लिए होता है तो यहां पर मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगी। But सर आपने बीटीएसटी के 2 स्कैनर दिए, उनमें से कौन सा यूज करना? बीटीएसटी की 2 स्कैनर नहीं दिए हैं, कहाँ कहाँ मैंने 2 है ना दिए हैं सर सर? आप, है ना, वो फाइल खोलिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बीटीएसटी की एक ही दिया हूं हाँ, मैंने। ये नीचे वाला देखिए, वो हाँ स्कैनर ये सॉरी, बीटीएसटी बुलिश बेरिश, हाँ, उनमें से कौन सा यूज करना है? एक स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ड है, मैं वो आपको बता रहा हूँ ना। नो इट इज द बेस्ट, मतलब ऐसा है कि इसमें स्टॉक्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन दोनों जब ओपन रहे और कोई स्टॉक्स फिल्टर में आए तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन ओनली स्क्वायर रूट एंड देन आई हैव गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो persistent सिस्टम। सो आई विल से कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेस्ड, ये वाली बेस्ड है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ये वाली बेस्ड है लोअर साइड के लिए, ठीक है, बियरिश को स्कैन करने के लिए।
or after that if you are not getting proper stops, you can also. So what you have to do, first you turn it on and then turn it on both and then run the स्कैन। अगर दोनों में अप साइड की है, अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है और आज की स्टैंड ये एक दिन की क्लोजिंग की स्टैंडर्ड डिविएशन से भी ऊपर है, तो आपके लिए ये अच्छा अपसाइड का मोमेंटम शो करता है। तो पहले दोनों को ओपन करें, जो स्टॉक्स आते हैं उसको एनालाइज करें, और अगर कुछ भी नहीं आता है देन फर्स्ट ओपन स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर इससे भी कुछ अच्छा आउटपुट नहीं आता है देन ओपन दिस। तो फर्स्ट बोथ, then standard deviation, and sir then this. So it is the combination I have done one. Here I have used, यहाँ पर मैंने किया है only स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पर मैंने उसको कंबाइन कर दिया है। तो फर्स्ट यूज, अभी जैसे दोनों को मैं अगर ओपन करूं तो आई हैव गॉट हियर परसिस्टेंट, एंड व्हाट द आउटपुट आई हैव गॉट इन द परसिस्टेंट सिस्टम, सुपर बुलिश। ये मैंने किया सुपर बुलिश बुलिश, और इसका डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा था। तो एक ही स्टॉक्स मिले तो उसको एनालिसिस किए तो अच्छा। बट अगर ऐसा है कि कुछ भी नहीं मिला, जैसे मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो देन टर्न इट ऑफ, यूज स्टैंडर्ड डिविएशन। इफ यू विल गेट ओके, इफ यू विल नॉट गेट देन टर्न इट अप एंड देन टर्न इट ऑन, एंड यू विल गेट स्टॉक्स। नाउ क्लियर सर? यस सर, ओके सर। Similar for the downside. First run both, then a standard deviation, and then a square root. आज जैसे स्क्वायर रूट में हमको एक भी स्क्वायर रूट में एक भी नहीं मिले, बट व्हेन आई हैव मेड दिस, तो आई हैव नॉट गॉट एनीवन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन में मुझको एक मिले हैं पावर ग्रिड। तो एक सेकंड में पावर ग्रिड की एनालिसिस कर लेता हूँ, थोड़ी सी समय है। पावर ग्रिड का क्या कंडीशन है? तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? अब क्या होता है आप उसको पढ़ लीजिए ना सर गूगल में, वो सर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट जैसे फॉर्मूला होता है, किसी का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, जैसे 4 का 2 आता है, वैसे किसी डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो वो कुछ आता है। वो आप एक्सेल में भी आता है। अब क्या कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डिविएशन? ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, STDE भी, इसमें भी कुछ है वो, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना सारा नंबर्स का क्या है। अब क्या है नहीं है, थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा गूगल में कैसा मतलब कि ना वर्क करता हो। ना हिस्टोरिकल डेटा है। अच्छा, पावर ग्रिड FNO का स्टॉक्स है ना, तो ये हाँ यस, आई हैव गॉट देम। 3,40,000, 5,40,000 पावर ग्रिड। ये तो फ्यूचर डेटा से बेरिश दिख रहा है। हाँ, नहीं फिर भी एक बार कर लेते वो 5,40,000, तो ये पहले से 3,40,000, 5 लाख, तो ये ऐसे ही मतलब ठीक है। फिर हम लोग ऑप्शन में आते हैं। ओनली बुलिश मतलब नॉट बुलिश, न्यूट्रल। हाईली बुलिश मीन्स इट इज बुलिश, और सुपर बुलिश 20,000, 7,000, बाप रे बहुत फर्क है, 20,000, 7,000। हाईली बियरिश एंड नाउ फाइनली डिलीवरी परसेंटेज की, क्या लोग सौदे को ले रहे हैं तो इसमें कुछ मोमेंटम हो पावर ग्रिड में। यस, नाइस डिलीवरी परसेंटेज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स बुलिश, बट इट इज नॉट highly bearish. It is your highly bearish, but it is so.
I will avoid power grid. Any kind of conflict arise की मतलब ठीक नहीं है. Avoid this. At least you need one super bullish, one bullish, one bullish और वन सुपर बुलिश, वन हाईली बुलिश, और ये एक मतलब दोनों में से कोई एक न्यूट्रल भी हो तो भी आपके लिए काम करेगा. बट अगर कंफ्यूजन डेटा है तो अवॉइड दिस. लॉट ऑफ स्टॉक्स आर देयर, यू कैन एनालाइज दैट वन. And so what is the So success rate? गुड सर, आई विल से कि गुड सक्सेस रेट, बट राइट नाउ यू कैन नॉट गेट टू मच एक्यूरेसी बेस्ड ऑन, बट व्हेन द अभी तो सर मार्केट, कुछ भी नहीं चल रहा, अभी तो कुछ अभी भी नहीं चल रहा. अभी कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन जब अच्छी होगी तो एक्यूरेसी, एंड सर ड्यूरिंग सर रिजल्ट सेशन एक्यूरेसी इज मोर देन 70 to 80% ड्यूरिंग रिजल्ट सेशन ऑफ द कंपनी. अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी उस टाइम पर. अदरवाइज आपको नॉर्मली 70% का एक्यूरेसी आता ही है. मतलब टोटल मंथ में आपने अगर 10 बनाए हैं तो 7 में आपको प्रॉफिट बनने की चांसेस होती है, अच्छी चांसेस होती है. सो यू कैन एनालाइज बेस्ड ऑन दिस. आप अपनी कल के लिए एनालिसिस करें, बट डोंट टेक एग्रेसिव पोजिशंस नहीं ले. मैं खुद नहीं ले रहा हूं तो मैं आपको क्या बोलूं एग्रेसिव पोजिशन. बट यू जस्ट गो एंड फाइंड द स्टॉक्स. एनालाइज तो हम लोग कर सकते हैं. वन स्टॉक, टू स्टॉक्स निकला, उसके में नेक्स्ट डे 10-15 तक क्या मूवमेंट हुआ, क्या मेरी मतलब कि नफे मतलब क्या आउटपुट मिला, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान करें. तो यू जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग फ्रॉम टुमारो, बट सर डोंट टेक पोजीशन. लेट द पैनिकनेस और न्यूज स्टॉप वंस, देन ट्राई. इसके बाद मैं भी कुछ स्टॉक्स वगैरह शेयर करूंगा कि ये बीटीएसटी, जैसे मैंने पॉली का भी ऐसे कुछ कुछ मैंने पहले शेयर किया था, लेकिन अभी जब से ये सब सिचुएशंस है मैंने मतलब शेयर नहीं करा. आई विल शेयर. तो आई थिंक कि एवरी टॉपिक एवरीथिंग हैज बिकम क्लियर सर. कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. यस सर, it's clear. सर सो आपने दो and वीकली परफॉर्मेंस and in intraday BTST section of module 3 I will give another screener for the BTST. हाँ, ये सर आस्क बोलिए. हाँ सर, आपने दो वीकली परफॉर्मेंस शीट दिया था कोर्स के स्टार्टिंग में, तो सर वो कॉन्सेप्ट्स आपने सिखा दिया है क्या कि हम लोग वही पढ़ने वाले हैं? वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो मैं ट्रेड देता हूँ, नहीं सर, आपने एक्सेल शीट पोस्ट किया था दो बार शायद, दो 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 रिपोर्ट दिया था आपने स्कोर स्टार्ट होने से पहले, वेबिनार के बाद तुरंत बाद. अच्छा आप एक बार मुझको सर स्क्रीनशॉट भेजे, मैं आपको बता दूंगा हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके सर, ठीक जहां है. पर मैंने सर दिया तो अभी उसकी सर टीसीडी कॉम्बो स्टॉक्स कैसे निकालना है वो नहीं बताया वो मुझे. अभी आने वाली है सेशन. आज तो बीटीएसटी हुई है, कल आपकी मॉड्यूल 3 की सेशन होगी, इसके बाद कॉम्बो स्टार्ट होगी सर. इंट्राडे ओके. कंप्लीट कर दिया हूं मैं. टाइम निकालना बता दिया हूँ गैंजिला से, बट सर एक्सेल से. टीसीडी कॉम्बो टाइम स्टॉक का तो इंट्राडे ही है ना सर? इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, लेकिन वो स्विंग के लिए है. कॉम्बो जो बनता है वो आप इंट्राडे के लिए, तो लेकिन उसकी हाई लो को मार्क करके हम लोग स्विंग में भी ट्रेड करते हैं, तो वो अभी क्या, स्टार्ट होने वाला है. तो तो ये आई हैव बेसिकली आप डेली कंप्लीटेड. शेयर करते हैं ना? हाँ, आप डेली आई शेयर हैव करते हैं ना, तो कंप्लीटेड. इट इज फॉर हाँ, इंट्राडे. आई हैव कंप्लीटेड इंट्राडे TCD कैंडल फाइंडिंग based on your यस. Gangila Excel along with combination with the mother candle. Then I have taught the TCD label, trend change label, buy above, sell below. I have shared. आज तो बहुत अच्छा काम किया दोनों में उसने, बहुत अच्छा काम किया. एक में तो अपसाइड मैंने क्या क्या दिया था वो, एक में अपसाइड बहुत अच्छा वर्क किया, और मतलब कि दोनों में ही मतलब कि ना नीचे से बहुत अच्छा. खैर एनीवे, I have taught today. I have taught BTST from next session, next to next. मतलब आपकी जब मॉड्यूल 2 की क्लास होगी, I will start TCD combo. I will take 4 session along with stock selection, and then I will teach swing trade कैश में. स्विंग ट्रेड कैश मीन्स कि इसमें जैसे क्या है कि टीसीडी कॉम्बो में जिस साइड ब्रेक करे उस साइड लेते हैं, और जो हम स्विंग ट्रेड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन
अलोंग विथ स्टॉक सिलेक्शन। उसमें जैसे आज आपने सपोज बाई किए, 10 दिन बाद आपको सर 5% बने, एक हफ्ते बाद 8% बने। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मुझको फ्यूचर में काम नहीं करना, ऑप्शन में आप बताएं। मैंने 100 पीस 200 500 पीस ले लिया, ठीक है, बजाज फाइनेंस मैंने ले लिया, 5% बने, 4% बने, मैं जा करके प्रॉफिट। देन आफ्टर सर TCD कॉम्बो, आई विल गिव दिस स्ट्रेटेजी, इट्स एक्यूरेसी इज सुपर सर, मोर देन 90 to 95%, आई विल गिव दैट वन। उसमें हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को भी इस्तेमाल करेंगे। आपने जैसे सपोज अपोलो हॉस्पिटल ले लिया, ठीक है, 50 क्वांटिटी ले लिया, पैसे है आपने ले लिया, तो नहीं, उसमें जब आपको 200 300 400 पॉइंट बन रहे हैं, आपने जा करके उसको प्रॉफिट को बुक कर लिया, स्विंग ट्रेड जिसको बोलते हैं। क्लियर सर? राइट सर। तो उसमें मैं जो स्ट्रेटेजी दूंगा इट विल वर्क्स बेस्ट इन द मार्केट। उसमें हिस्टोरिकल डेटा ये सब भी लगेगा, डिलीवरी परसेंटेज भी लगेगा, हिस्टोरिकल डेटा भी लगेगा। तो आज की सेशन एंड करते हैं सर। आई विल शेयर दिस एक्सेल अलोंग विद दिस एंड अलोंग विथ स्क्रीनर ऑल्सो। सर जरा गोल्ड का प्रिडिक्शन भी दे दीजिए ना, गोल्ड तो बहुत नीचे जा रहा है। गोल्ड अभी एक्यूमुलेशन का जगह पर है ना, आप बाई करिए ना सर, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF। गोल्ड इज सर, गोल्ड बॉटम 1,22,000 है, और वो राइट अभी भी टाइम है है। बाय करने का? बहुत अच्छा समय है सर, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस प्राइस पर आपको फिर मतलब कभी नहीं मिले। इट इज द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट। ओके ओके। तो आप सर ETF बाई करिए। मैं तो 1,40,000 से मैं सर एक्यूमुलेट शुरू कर दिया हूँ फिर से फ्रेश। एंड सिल्वर अराउंड व्हेन इट हैज टच्ड 2,10,000 लास्ट डे, एंड लास्ट टू लास्ट डे आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड 20,000 लास्ट से लास्ट डे। और कल मैंने 11,000 का मैंने ये खरीदा है, ETF खरीदा, सिल्वर ETF। आई ओके। हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग। अभी देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा तो एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे एकदम से सर मेरे को बॉटम, तो जब ये प्राइस यहाँ पर था, यहाँ पर सॉरी, तो ये जैसे ठीक है 2 लाख, मैंने 2,10,000 पर जब प्राइस में अपसाइड हुआ, मैंने मतलब 20,000 का ETF लिया। अभी मैंने कल नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पर था तब मैंने लिया था, कल इससे नीचे आज भी लिया। तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन का समय है। इट इज द टाइम टू एक्यूमुलेट ओके गोल्ड एंड सिल्वर, एंड सर इट इज द बेस्ट टाइम एक्यूमुलेट। ओके। थोड़ा बहुत नीचे जाने से वो इंसान को डरना नहीं चाहिए। अगर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ गुड इन्वेस्टमेंट, डोंट बी पैनिक। कैन वी एक्सपेक्ट सिल्वर द विल रिजल्ट इन सिल्वर 6 मंथ? सिल्वर सिल्वर विल क्रॉस अगेन 4 lakhs till November 2026, और सर ओके दिसंबर एंड ओके ओके। 4 lakhs सिल्वर विल क्रॉस अगेन। और ETF भी आराम से रख सकते हैं स्टॉक की तरह। ये तो सबसे अच्छा है ना इन्वेस्टमेंट का। आप अपने अकॉर्डिंगली 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, सेम परसेंटेज रिजल्ट। मतलब अगर ये सिल्वर है, अगर ये सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर फ्यूचर है, सिल्वर बीज। और और मैं सिल्वर ETF लगाता हूँ, निप्पॉन सॉरी, सिल्वर सिल्वर बीज। बीज, सिल्वर बीज। As the price of silver has moved, price of silver bees also moved. Suppose from here to here, it has given 10% movement. Also, silver bees from here to here, it has given, यहाँ पर परसेंटेज में आ गया है, मैं काम करता हूँ, सिल्वर का चार्ट रो है, एक काम करता हूँ, सिल्वर बीज, ये सबसे बेस्ट समय सर सर ये भी एक्यूमुलेट वन कर। क्लिक पे सेल हो जाता है? ओके सर, ओके। हाँ, मतलब स्टॉक्स जैसा आप बाई और सेल करें। ठीक। सो फ्रॉम ठीक है सर। 23rd,
अच्छा रिटर्न इसने भी दे दिया, सिल्वर भी 10-12%, सिल्वर हैज गिवन दिस, इट हैज ऑल्सो गिवन गुड रिटर्न। सो चार्ट इज क्वाइट सिमिलर, वो चार्ट सेम रिटर्न का चार्ट होता है, तो इसमें पैनिक होने का नहीं है। वो आराम से एक्यूमुलेट करें, एक्यूमुलेशन का समय है सर। एंड विद इन 1 ईयर एज पर माई डेटा एंड माई प्रिडिक्शन में, कि इट विल गिव यू ऑलमोस्ट double return within 1 year from this price. ओके सर। Almost double. More than sir gold. As per this, gold from 60,000 it has given 1,80,000. But silver from 70,000 it has touched 4 lakhs. It has given 6 to ओके 7,000 return more than gold. So silver is at the best price. तो आज के सेशन एंड ओके। करते हैं सर, हम लोग कल हाँ जी मिलेंगे सर। इंट्राडे बीटीएसटी की सेशन में सर। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। गुड अच्छा, नाइट सर। जाते जाते मैं एक आप लोगों के लिए रेमेडीज बता देता हूँ, एक वॉक करें, ओके सर। 5 मिनट समय दे। मार्स की मैंने शेयर किया था, मैं एक रेमेडीज बता देता हूँ। सैटर्न की रेमेडी नहीं, राहु की रेमेडीज, बिकॉज वी आर इन ए स्टॉक मार्केट। नंबर 1, बाथ रेमेडी। अभी समय है तो मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ। अच्छा, एवरीवन नोज की व्हाट इज लोहबान, बहुत लोगों को यस पता सर, यस। होगा, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं वो मतलब गूगल में दिखा दूँ। लोहबान आती है, लोहबान, लाइक दिस जैसे सर धुना वगैरह आती है, वैसे मतलब लोहबान आती है वो, धुना या लोहबान धुरंधर ना। मतलब पूजा तो शॉप से मिल जाती है आराम से। हाँ 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 ठीक है, पूजा दुकान में आप बोलेंगे तो लोहबान मिल जाएगी। तो ऑन, अच्छा, राहु की जो डे होती है वो होती है वेडनेसडे प्लस सैटरडे ना। तो ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बाथ, आपको साबुन लगाना है, तेल लगाना, आपको जो लगाना है, तेल नॉर्मली सैटरडे को नहीं लगाए, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सैटर्न। सरसों तेल नहीं लगाए, नारियल तेल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बाथ, टेक हाफ बकेट वाटर एंड मिक्स ए स्मॉल लोहबान टू द वाटर, थोड़ी सी उसमें लोहबान मिला दे। लोहबान मिला करके, अच्छा, राहु बीज मंत्र इज देयर, राहु की बीज मंत्रा होती है, वो आपको मिल जाएगी। ओम द्राम, ये ओम, ओम सर भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः, राहु बीज मंत्र, ये 7 टाइम्स, राहु बीज मंत्र 7 और 11 टाइम्स वाटर में अपनी 3 मतलब फिंगर को डाल करके वाटर को रोटेट करना है, और ये मंत्र का उच्चारण करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इट इज कॉल्ड, कि उस पानी को अभिमंत्रित करना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एज पर हिंदू माइथोलॉजी उसको अभिमंत्रित करना। एंड देन उस पानी से नहा लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? नंबर 1। यस नंबर सर। ना, टेक थोड़ी सी काली तिल ले ले, प्लस ब्लैक उड़द आती है, ठीक है, उड़द की दाल, काली उड़द, और प्लस जैगरी ले ले, ठीक है, गुड़ ले ले, जैगरी ना, और ब्लैक कपड़े ले ले, ब्लैक क्लॉथ ले ले, छोटी सी। एंड इफ यू हैव नियर बाई एनी काल भैरव मंदिर, अगर काल भैरव का मंदिर है, इनके जो देवता होते हैं, इनको जो मतलब जैसे वेटनेसडे बुध, बुध बिलोंग्स टू लॉर्ड गणेश, मार्स मंगल बिलोंग्स टू हनुमान जी बजरंग, तो इनके जो होते हैं वो सब काल भैरव होते हैं। बट अगर काल भैरव की मंदिर नहीं है, यू कैन ऑल्सो टेक एनी शिव जी, शिव मंदिर ऑल्सो टेक।
बट अगर काल भैरव की मंदिर है तो वहां पर जा करके इसको चढ़ावा कर देनी है। तो सबसे जो बेस्ट होती है, लेकिन आपको पंडित वगैरह ब्राह्मण करने नहीं देंगे, ही विल प्रोहिबिट यू। तो काले कपड़े में इसको बांध लेनी है। 100 ग्राम काली तिल लेंगे तो मतलब आराम से सर 11 वीक्स आराम से कट जाएगी। थोड़ी काली तिल, थोड़ी काली उड़द, थोड़ी सी गुड़, काले कपड़े में बांध ले, और वो काल भैरव की मंदिर में जाकर के काल भैरव के चरणों में अर्पित कर दे। ठीक है, वो मतलब अपना दान कर दे। बट मतलब पंडित नहीं करने देंगे, बोलेंगे ये टोटका है, ये है। बट इट इज नॉट टोटका, इट इज अ मेथड। मंत्र मीन्स ये एक मतलब मेथड होता है कि नॉट इट इज द तंत्र, इट इज द मंत्रा मेथड, मतलब कि ना जिससे हम लोग एक्टिवेट करते हैं राहुल को। ये है, ठीक है, राहु को। तो अगर नहीं करने दे तो एक पॉलिथीन में ये सारी चीजें ले ले और उनको मतलब कि ना ब्राह्मण को दे दे और कुछ मतलब दक्षिणा दे दे, तो आपके लिए काम आसान हो जाती है। तो आप बोले तो वो अपने आप से ही, ठीक है, चढ़ा दे। और ये जो करनी है ये आपको अगेन वेडनेसडे एंड सैटरडे, 2 दिन। नो, थर्ड वन, स्वीट फीड, स्वीट बिस्किट और स्वीट रोटी, ठीक है, मीठी रोटी। टू ब्लैक डॉग, अगर नहीं मिले तो डॉग, ये आप करें। 5 रुपए की बिस्कुट ले और आप मतलब कि ना डॉग को खिला दे, ठीक है। बिकॉज डॉग्स आर नॉर्मली बिलोंग्स टू, मतलब जो राहु के वाहन होते हैं, कौन होते हैं सर? डॉग। डॉग्स होते हैं। तो डॉग्स को खिलाए, राहु बहुत खुश होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव, टेक अ काजल की डिब्बी ले ले, ठीक है, 5 रुपये 10 रुपये में आती है, काजल की डिब्बी ले ले। एंड गो टू एनी बानयान और पीपल ट्री। अच्छा, ये आपको कब करनी है? ये आपको करनी है, ये जो रेमेडी करनी है आफ्टर 8 PM। मीन्स इट इज कंसिडर्ड कि राहु जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज राहु एंड केतु इज अ शैडो प्लैनेट। एंड शैडो व्हेन द सनलाइट, जब वो मतलब कि ना सनसेट होता है, इसके बाद में शैडो की पावर इंक्रीज होती है। तो इसको 8 बजे करनी है। एक काजल की डिब्बी ले ले, उसको आप सर हाथ में रखें, ठीक है। आपको जो मांगना है, आपकी जो समस्याएं हैं, हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, एनी रिलेटेड, काजल की डिब्बी को राइट हैंड में रखें, हैंड को बंद करें, मुट्ठी को, जो मांगना है मांगे। मांगने के बाद देन अपने आपकी जो कामना है, जहां सक्सेस होना है, पैसे फंसे हुए हैं जो, राहु विल गिव यू एवरीथिंग, ही इज द पावरफुल। एंड देन आपने अपना सर ब्लेसिंग मांग लिया। इसके बाद राहु बीज मंत्र एटलीस्ट 7 to 11 टाइम्स जप करें। काजल की डिब्बी को हाथ में ही रखनी है, ठीक है, काजल की डिब्बी को हाथ में रखें। जो मांगना है मांग ले, या आप पहले मंत्रा पढ़ ले तो भी होगी, पहले मंत्रा पढ़ ले, इसके बाद आपको जो विषय से आप मांगे, ठीक है। और इसके बाद बानियान या पीपल ट्री की रूट जो होती है उसके नीचे इसको आपको दबा देनी है, ठीक है, काजल की डिब्बी को दबा देनी है। जब ये करे तो कोई आपको पीछे से या बैक से साउंड नहीं दे। बट अगर दे भी तो यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्स हिम, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना। उसको जो बोले आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगेन कम बैक टू होम एंड स्टार्ट योर वर्क। सो इट विल बी बेस्ट आफ्टर 8 PM और आफ्टर 10 PM आप इसको करें। आई कैन एश्योर कि ये सर 10 रुपए की रेमिडीज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। फ्रॉम द फर्स्ट डे टू सर थर्ड डे इट विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट। नाउ बोल एनी कौन डाउट? दिन करना है इसको? इसको भी सर वेडनेसडे और सैटरडे, राहु के दिन।
लेकिन रात को ये सारी चीजें क्या है कि मंत्रा है। अभी जैसे कुत्ते को बिस्किट तो आप तो दिन में भी खिला सकते हैं, रात को भी खिला सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे मंदिर में करना है तो सुबह सुबह कर ले, नहाना है तो हम लोग सुबह ही नहाते हैं तो सुबह ही कर ले। बट इसको करना है ओनली सर रात को 8 बजे के बाद, 10 बजे 11 बजे तक कर ले। 12 के बाद नहीं करे, बिकॉज सर दे विल चेंज। सो अप टू 12 यू डू दिस। काजल वाली टिप ये बहुत पावरफुल है, मैं सर इतना बता सकता हूँ। तो फर्स्ट क्या करनी है, काजल की डिब्बी एक ले लेनी है, ठीक है। आपको मिल जाएगी 10 रुपये में, वो मतलब पैकेट भी मिल जाएगी ना मैम? मैम इज नॉट देयर? यस सर, मिल जाती है पूजा मिल जाएगी शायद। हाँ, सर। काजल की डिब्बी मिल जाएगी। अपने राइट हैंड में ले ले, मिट्टी में सब दबाने से पहले राइट हैंड में ले ले, कोई भी सर, बानियान ट्री हो पीपल ट्री हो, वो मतलब ये सब दोनों में से कोई एक अपने सर हाथ में रखे। आगे आप मंत्रा पढ़ ले, राहु बीज मंत्रा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः 11 टाइम। देन आपकी जो विशेष है उसको क्लियरली आप बोले कि आई एम योर सन, मैं आपका संतान हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझको इससे निकालिए, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये करना, आप बोले। बोलने के बाद और कुछ नहीं करना है, उसको मिट्टी में दबाना है। मिट्टी में दबाते समय या ऐसा करते समय कोई आपको लोग आपको आवाज देंगे, टोकेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना। जैसे आप काम करें, सीधा वहां से वापस मुड़े। अब आपको जहां जाना है चल जाए, जॉब ये घर जाना है कहीं जाना है तो आपको जहां जाना है चल जाए, कोई इश्यू नहीं है। दबाते समय अच्छा, मिट्टी में सर दबाने के बाद वो जब आप सर बैक मुड़े तो फिर आपको पलट करके नहीं देखना है, सीधा आप अपने रास्ते निकल जाए। जैसे आपको अगर घर जाना है तो घर निकल जाए, आपको अगर फिर कहीं जाना है, अड्डा मारना है दोस्तों के साथ, या चाय पीना है रात को, या मेरी क्लास है तो आ जाए, क्लास में आकर बैठ जाए। मतलब आपने उसको दबा दिया, दबाने के बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, सीधा आ जाए, जहां जाना है आप मतलब निकल लो। आप इसको करें ना सर, आप 3 सप्ताह बाद बोलेंगे कि मेरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर एक आप अरबपति करोड़पति, बट योर प्रॉब्लम विल स्टार्ट मिनिमाइजिंग एंड योर न्यू अपॉर्चुनिटी डोर विल ओपन। इवन नॉट इन द स्टॉक मार्केट, इन जॉब बिजनेस, जहां पर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, जहां आपकी सर कोर्ट कचहरी में सुनाई नहीं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, यू विल गेट अ गुड डॉक्टर एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इट इज वेरी वेरी पावरफुल, सर काजल ये एक वाली। बार ही करना है? हाँ, एक बार करना है? नहीं, मिनिमम 7 to 11 टाइम्स, मिनिमम 7 से 11 बार। अगर अगर आपको अच्छी रिजल्ट मिल रही है, यू आर गेटिंग गुड, यू कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, कुछ बुराई नहीं है इसमें, बट सर काली मिनिमम। डिब्बी दबाने के बाद में हाथ पैर धोना पड़ेगा सर, या वैसे आ सकते हैं? हाथ पैर धोले घर में आके तो अच्छी है, लेकिन आपको जहां जानी है आप मतलब जा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। बस वो ठीक मिट्टी में दबाने के बाद एक ही कंडीशन है कि पीछे मुड़कर नहीं देंगे, लोग ठीक है सर। आवाज देंगे, टोकेंगे, यू आपको से रिस्पॉन्स नहीं करना। अब सीधे आ जाए, जहां ठीक। निकलना है, मार्केट जाना है मार्केट चल जाए, मेरी क्लास में आना है क्लास में आ जाए, हाथ में। अगर आप घर में आते हैं तो अपनी हाथ पैर धो ले, अगर नहीं आते हैं तो जहां निकलनी है निकल जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। थैंक ओके, यू सर। आप इसको करें ना, आप इसको करें, नहाने वाली करे, लोबान आप मतलब कि ना 20 रुपए की लाएंगे तो वो मतलब कि ना कितनी वीक स्मूथ करेगी, इसको करें। अगर काल भैरव का मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर चलेगी, शिवलिंग की भी मंदिर चलेगी, उसमें कोई इश्यू नहीं। करे सर, आई कैन से कि आपकी प्रॉब्लम फ्रॉम द फर्स्ट डे, आपकी मतलब पैनिकनेस कम होना शुरू होगी। डेप्ट है तो न्यू ओपन, अभी जैसे डेप्ट है 10 लाख का, तो ये डेप्ट तो सडनली नहीं मिटेगी ना, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्लस जो चीजें शेयर मार्केट में आप काफी मतलब मिस्टेक कर रहे थे, यू विल गेट ए डिसिप्लिन ग्रो, लाइक योर, कि जैसे सर ठीक है, धीरे 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 वॉल आपके लिए वॉल्यूम बढ़ रहा था। पहले क्या है कि आप
इसी मंथ सबसे पहले ग्रीन में क्लोज किए, कंटिन्यू 3 मंथ कुछ ना कुछ मतलब ग्रीन में क्लोज हुई। फिर वहां से धीरे धीरे कि ये सेटअप इसमें अच्छा वर्क कर रही है, सर ने ये पढ़ा ये अच्छा, तो यू विल गेट कंसिस्टेंट ग्रोथ इन ऑल्सो स्टॉक मार्केट एंड ऑल्सो इन लाइफ, एंड देन वन डे योर एंटायर लॉस विल बी फिनिश्ड। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इमीडिएट और बहुत फास्ट कुछ दिन में होगा। सर ये ओके काले सर, तिल आज की सेशन वाले एंड करते शाम हैं। कभी भी करते हैं या सुबह ही करना है जी? कौन सी? ये काले तिल वाला जो आपने मंदिर का बताया, ये सुबह सुबह शाम में में कर कभी? लेना। ये तो सुबह। मंत्र वाली है ना, मंदिर में दान करना है तो शाम को भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, इसमें कोई और और ये जो मनाही नहीं कुत्ते है। वाला जो आपने बताया, ये रोज कर कुत्ते सकते को हैं? कभी भी खिलाए ना, सारा दिन में आप अगर रोज कुत्ते को खिलाएंगे तो भी कुछ नुकसान होगी। एनिमल्स को खिलाने से कभी नुकसान नहीं होती है सर। तो ठीक। इसमें मेरे लिए कोई बाधा नहीं है कि सुबह ही खिलानी है, मंदिर से निकल के खिलानी है। कुत्ते को खिलानी है मतलब खिलानी है। आप अगर नेचर को कुछ दे रहे हैं तो आपका डिपॉजिट है, आपको मिलेगा, और राहु इससे खुश होता है तो आपको देगा। इसमें सुबह शाम कुछ नहीं है। नहाते हम लोग सुबह सुबह हैं, शाम को तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग नहीं नहाते हैं, मैक्सिमम क्या नहाते ही नहीं है, बहुत कम लोग गर्मी में थोड़ी नहाते। तो इसको भी सुबह ही कर ले, अर्ली मॉर्निंग। बट यहाँ सर पर एक ही लोबान क्या होता है, कंडीशन। लोबान? हाँ, सर ये लोबान क्या होता है? लोबान होता है सर, जाएंगे पूजे की दुकान पर तो आपको मिल जाएगी, लोबान बोलेंगे तो मिल जाएगी सर। अच्छा अच्छा। लोबान पूजा, जैसे हम लोग सर ठीक है धूना लाते हैं ना, तो मतलब कि ना ठीक है धूना जलाते हैं घर पे वो, हाँ 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 हाँ। तो वैसी ही होती है, लेकिन धूना नहीं है, ये अलग है लोबान। आपको मिल ओके। जाएगी पूजा के दुकान। बट यहाँ पर एक ही कंडीशन में बार बार बोल रहा हूँ कि 8 PM से लेकर के बिटवीन 12 PM, इसको सर रात को ही करनी है, ये सबसे पावरफुल है, बट इसको रात को करनी है, 12 बजे से पहले नहीं तो ये दिन मतलब क्या होगा, बदल जाएगा। इसको करे। अच्छा, अगर कंसिस्टेंट नहीं कर पाए, सपोज आपने 3 वीक्स किया, आपको बहुत बेनिफिट मिला एकदम मतलब, बट मतलब 4th वीक्स आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, योर वाइफ कैन ऑल्सो डू, वाइफ कर सकती हैं। यस। आपके अगर बेटे बेटी हैं तो बेटे बेटी भी, सन एंड डॉटर ऑल्सो कैन डू। बट अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, हम्म। अगर इस वाली रेमिडीज में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ड्यूरिंग सर ये ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उनकी सर हस्बैंड है तो हस्बैंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि जब आप मंदिर में दान दें तो उनकी नाम, ठीक है, गोत्र, उनकी नाम और सर गोत्र का उच्चारण करें। मतलब जैसे सपोज कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है, दीपक शर्मा के लिए, तो मैं बोलूंगा कि ये दीपक शर्मा, उनकी सर गोत्र ये है, ये मैंने बोल करके मैंने मतलब कि ना ब्राह्मण के हाथ में दे दिया वो, ठीक है, आप उसको चढ़ा दे, ठीक है। ओके। तो अगर ये बीच में अगर मतलब कि ना ब्रेक आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक आता है ना, नहाने में सर ब्रेक आता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप शुरू करें, इससे कोई। बट इसको 11 वीक्स कंटिन्यू करना है, जब आप शुरू करें तो 11 वीक्स करें। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप नाम और सर ठीक है गोत्र लेकर के कोई भी कर सकते हैं। आपके अगर भाई साहब है तो भाई साहब भी कर सकते हैं, सिस्टर है तो शी कैन ऑल्सो डू, ओनली कंडीशन नाम और गोत्र लेकर के। और इसमें क्या है कि कोई भी नहीं कर सकते, योर वाइफ एंड योर सन एंड डॉटर कैन डू। बट एक ही शर्त है कि डॉटर की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनकी नाम और गोत्र अलग हो जाती है। कर सकते, इसमें नाम और गोत्र बोल करके नहीं दबानी है मिट्टी में, इसमें ऐसे ही दबानी है। लेकिन जब हम लोग पूजा देते हैं तो नाम और गोत्र से भी देते हैं। जैसे कुछ लोग मंदिर में नहीं जा पाए, वैष्णव देवी नहीं जा पाए या पूरी, तो अपने प्रसाद का चढ़ावा नाम और गोत्र से देते हैं, तो वो आप देंगे तो सेम रिजल्ट होगी। समझ गया। आज की सेशन एंड करें सर, ऑल क्लियर? यस। यस सर। यस सर। ओके, Yes, थैंक्स अ sir. लॉट, गॉड ब्लेस थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एवरीवन सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक हैव अ ठीक है। नाइस यू।